everyone, welcome to the budget series of CSAP IAS Academy. In this video, we will be dealing with and knowing the key terms or basic terms of the budget. In this video, the first topic is fiscal deficit. So what do we know by fiscal deficit? Fiscal deficit's formula you can see on your screen. It is the total expenditure over total receipts excluding borrowings. So we write the formula as total expenditure minus total receipts excluding borrowings. Now what does this total expenditure includes? Total expenditure includes both revenue expenditure and capital expenditure, and total receipts also includes revenue receipts and capital receipts. But to calculate the fiscal deficit, we only consider the total expenditure minus total receipts, but excluding the borrowing. Borrowing is capital receipt, which we do not consider in calculating fiscal deficit. So in other words, fiscal deficit is the borrowing need of the government. अगर आप इसको ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट को बजट ईयर में इस साल से फॉर एग्जांपल 25-26 को गवर्नमेंट को कितना पैसा बोरो करना पड़ेगा, दैट बोरोइंग नीड इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट. The next topic is primary deficit. The formula for primary deficit is equal to fiscal deficit minus interest payment. When we subtract the interest payment of the last year's or the previous year's debt from the fiscal deficit, that is borrowing amount, then we get the primary deficit. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो पैसा गवर्नमेंट बोरो करेगा इन द बजट ईयर, उस बोरिंग अमाउंट में से गवर्नमेंट कितना पैसा इंटरेस्ट पेमेंट के हिसाब से या फिर डेट सर्विस के हिसाब से वो देगा. तो अल्टीमेटली जो पैसा बच जाएगा फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और अदरवाइज, उसको कहा जाता है प्राइमरी डेफिसिट. ठीक है, उसका फॉर्मूला है प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. द नेक्स्ट topic is CAPEX, CAPEX. The CAPEX stands for capital expenditure. Capital expenditure, it is a type of expenditure of the government budget where the government either creates asset or it decreases any liability. इसको आप एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे कि गवर्नमेंट अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है या फिर गवर्नमेंट अगर कोई एसेट परचेस करता है, तो गवर्नमेंट का क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, गवर्नमेंट से पैसा जाएगा. That type of expenditure is known as capital expenditure, which is abbreviated as CAPEX, CAPEX. उसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट अपने पिछले बोरोइंग्स को अगर रीपे कर दे, तो वो भी है कैपिटल एक्सपेंडिचर. इवन अगर गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट को और किसी को भी अगर गवर्नमेंट लोन देता है, लोन एक्सटेंड करता है, उसको भी कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्रोप्रिएशन बिल. So appropriation, it is the bill which gives the government the power to withdraw amount from the consolidated fund of India. तो आइए नेक्स्ट हम समझते हैं consolidated fund of India क्या है. Consolidated fund of India, it is a constitutional fund which is backed by Constitution of India's Article 266 Clause 1. Consolidated Fund of India, Government of India का एक ऐसा फंड है जहां पर each and every receipt of the government, whether it is revenue receipt or whether it is capital receipt, it is credited into the consolidated fund of India. और consolidated fund of India से अगर government of India को मनी पैसा विड्रॉ करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट में अप्रोप्रिएशन बिल पास करना होगा. सो वैसे ही और दो फंड है कॉन्स्टिट्यूशनल फंड. नेक्स्ट इज द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया विच इज बैक्ड बाय आर्टिकल 267 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कंटिजेंसी का मतलब क्या है? कंटिजेंसी का मतलब है अनफोर्सिन समथिंग. कुछ एक्सपेंडिचर अनफोर्सिन है कि जो कि हमें पहले से पता नहीं होता है, वो अचानक उठ के आ जाता है. तब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, तब गवर्नमेंट कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉ कर सकता है. द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया. पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा फंड है जहां पर ना ही गवर्नमेंट का कोई लोन, ना ही गवर्नमेंट का कोई इनकम क्रेडिट होता है, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है. अदर देन दैट, ऑल द रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट इज क्रेडिटेड इनटू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को. जैसे कि प्रोविडेंट फंड, अगर आप
गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर कोई भी एम्प्लॉय हो, अगर आप प्रोविडेंट फंड आपके सैलरी से काटा जा रहा है, तो वो प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पब्लिक अकाउंट में रखेगा। वो प्रोविडेंट फंड से काटा हुआ पैसा ना ही गवर्नमेंट के लिए लोन है, ना ही गवर्नमेंट का इनकम है, वो सरासर पब्लिक का पैसा है। इसी वजह से उसको रखा जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इज़ बैक्ड बाय आर्टिकल 266 क्लॉज़ 2। थैंक यू सो मच।